I have this rule called 3x rule, okay? So for example, this iPhone, if it costs 1 lakh rupees, if I'm able to buy 3 iPhones at once, only then I should be buying it. पैसा ठीक से संभालो तो what are the 2 or 3 things that a person should do or not do? शुड डू और शुड नॉट डू। रिटर्न मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में कभी मत पड़ो, किसी भी अनरेगुलेटेड चीज़ में इन्वेस्ट मत करो। जो भी आप इनफॉर्मल लैंडिंग करने की सोच रहे हो या आप बोल रहे हो कि मैं किटी डाल लूँ, वो सब चीज़ें मत करो। वहाँ पर जो प्रिंसिपल का लॉस है वो पूरा हो सकता है। रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो, रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रखो और अपनी लाइफ पे फोकस करो। Brilliant. That was so well said, right? Neeraj, 2 or 3 things by which people will start managing their money or being aware about managing their money. What would those be? See, it's all a game of psychology, right? Psychology and also habits and what you desire in your life. तो I've always desired financial freedom, for example. तो मुझे पता था कि मुझे पैसा सेव करना है because I want to have enough so that I can enjoy the rest of my life, right? That's what I did. That's why I was working in a corporate job for 10 years, so that I am able to save. उसके बाद मैं जो भी कमाऊँगा, at least I should be able to earn so much कि I'm able to meet my expenses. And I reached that stage very soon in my business also. And now I'm able to invest again. Okay, so पहली बात तो clarity रखो अपने life में कि क्या चाहिए मेरे को पैसों से, because we think that in our 20s and 30s लगता है कि we will be able to work for the rest of our lives and meet the expenses and meet our financial goals. But trust me, it's not going to happen, because once you grow older, right, you will be tired of your job and you will want to stop it somewhere. और जब पैसा नहीं होगा तब आप struggle करोगे. करेक्ट। तो सबसे बड़ी चीज़ तो वो है. उसके बाद टेक केयर ऑफ योर बेसिक्स, वेरी सिंपल स्टफ, राइट? इवन अ वेल्दी पर्सन नीड्स अ हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि इवन इफ आई हैव 15-20 करोड़, व्हाई शुड आई पे 20-30 lakhs का हॉस्पिटल बिल व्हेन यू नो छोटा सा एक्सपेंस एवरी ईयर कैन टेक केयर ऑफ इट, राइट? सो हैव दिस, वी टेक केयर ऑफ योर बेसिक्स, हेल्थ इंश्योरेंस. Term insurance is such a simple product, but we end up getting influenced by our parents or our family members and buy the most टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एवर आउट देयर, राइट? करेक्ट। तो वो नहीं करना है. टर्म इंश्योरेंस एक और चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज as soon as we get employed and start earning money, we build a lot of start building liabilities also along with that. होम लोन ले लिया, पेरेंट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं, शादी कर लिया, फिर बच्चे हो गए, वो डिपेंडेंट हो गए. सो यू हैव सो मेनी डिपेंडेंट्स. पैसा तो है नहीं, क्योंकि मेरा कार, so we've seen examples where the car EMI is more than your monthly SIP, and your net worth is nothing. You Correct. shouldn't be doing We have these seen things. examples. Don't spend money on consumables when you don't have to pay for full. I have this rule called 3x rule, okay? So for example, this iPhone, if it costs 1 lakh rupees, if I'm able to buy 3 iPhones at once, only then I should be buying it. At Correct. once means in full payment, in full cash. Correct. So this is my rule for Correct. consumables. तो ये रूल फॉलो करो, you will never be in trouble in your life. करेक्ट। निशान जी, आपके कोई रूल्स है? ये बहुत बढ़िया रूल था. So I will not tell you rules, I will tell you some examples, so rules will automatically get clear. तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ बिना कोई नाम लिए. तो एक हमारे क्लाइंट हैं, हस्बैंड वाइफ कपल, नेटवर्क टोटल 2 लाख रुपए की नहीं है, बट हाथ में एक आईफोन है. सो आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ द राइट थिंग टू डू. एक और हमारे क्लाइंट हैं, उनकी सैलरी 2 CR प्लस है एनुअल सैलरी, बट तब भी उनका जो मंथली एक्सपेंसेस 70,000-80,000 है. सो ही स्टेज विद इन द मीन, इवन इफ ही हैज़ द एबिलिटी टू स्पेंड ऑन एनीथिंग. सो यू हैव टू बैलेंस. ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रूगल रहना है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लैविशली स्पेंड करना है. वंस यू फाइंड द राइट बैलेंस, एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग सॉर्टेड. तो मैंने ये जो दोनों क्लाइंट्स का आपको बताया, मैं दोनों के लाइफस्टाइल से एग्री नहीं करता हूँ. एक का लाइफस्टाइल ऐसा है जो अनसस्टेनेबल है, और एक का लाइफस्टाइल ऐसा है कि ही कैन डू एनीथिंग इन लाइफ बट ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग. सो मैं दोनों के लाइफस्टाइल से एग्री नहीं करता. एक को लाइफस्टाइल काफ़ी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और ऑन दी अदर हैंड दूसरे को डाउनग्रेड. दूसरे को आई विल नॉट से डाउनग्रेड, आई विल से दे हैव टू रैशनलाइज द एक्सपेंसेस. Right. And expectations. And expectations. Absolutely.